Greetings 12th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 4th of the chapter and of bipolarity. In the last class we have discussed Mikhail Gorbachev and his policies which were responsible for the disintegration of USSR. Along with that we have also seen what were the changes in the world scenario after the disintegration. For example, we have seen that Russia emerged as the successor of USSR. All the treaties which were signed by USSR, now it was the responsibility of Russia to fulfill that. Along with that, the permanent seat of UN Security Council, that was also, you can say that was also got by Russia only. So it means Russia was considered as the successor of USSR, right? And the old Soviet system that we have discussed from the first or second class, that was buried and died. But now there should be a question in your mind that if the system was that much developed, we have seen economically it was that much sound that after USA it was having the biggest economy of the world, right? But even then, which situations were there which were responsible for the disintegration? Although you have discussed, we have studied that all of the policies, you can say basically when the Gorbachev did not intervene in the disintegration and the one by one all of the state they disintegrated from USSR. All the things you have studied. Along with that you have studied that the feelings of freedom among the members of USSR, that was also responsible for the disintegration. But now we are going to discuss why did Soviet Union disintegrate. All the factors which were responsible for it, we will discuss all the factors in detail today, right? So let us start now. Question is, why did the Soviet Union disintegrate? So how did the second most powerful country in the world suddenly disintegrate? अब क्वेश्चन तो यही है कि जब एक तरफ आप बोल रहे हो कि ये वर्ल्ड की इतनी पावरफुल इकोनॉमीज में काउंट हो रही थी, सो कैसे डिसइंटीग्रेट हो गई? दिस इज अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग, नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द सोवियत यूनियन एंड द एंड ऑफ कम्युनिज्म, बट ऑल्सो बिकॉज इट इज नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी द लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम टू कोलैप्स. ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यूएसएसआर इतनी बड़ी इकोनॉमी थी एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट इट, नो, बल्कि ये क्वेश्चन इसलिए भी रेलिवेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है पूछना कि आप समझ सको सोवियत सिस्टम को, अलोंग विद दैट आप ये समझ सको कम्युनिज्म का एंड हुआ, बट ऑल्सो आप समझ सको कि ये दुनिया की कोई पहली और लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है जो कोलैप्स हुआ है. इट मीन्स हिस्ट्री में और भी कुछ हुआ होगा ऐसा, या फिर फ्यूचर में ऐसे चांसेस हैं दैट इट कैन हैपन कि किसी भी बड़ी इकोनॉमिक का डिसइंटीग्रेशन हो सकता है. So that you can understand कि कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं. That's why it is important to understand the system of USSR specially, ताकि हम लोग उससे कुछ सीख सकें, right? Because history repeats itself unless and until we learn from it. History repeat करती है अपने आप को. So that's why if you want to learn something from the experiences of USSR, na, that's why it is most important to study it, right? So while there are unique features of Soviet collapse, there may be more general lesson to be drawn from this very important case. और सबसे important चीज कुछ तो स्पेशल हुआ होगा, कुछ तो यूनिक भी हुआ होगा जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ. बट इवन देन उस डिसइंटीग्रेशन से हम कुछ कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? देखो, जब आप बात करते हो, हम लोग वर्ल्ड वॉर स्टडी करते हैं, राइट? तो हमारे दिमाग में हम जनरल कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जब सीक्रेट ट्रीटीज होती है ना वर्ल्ड लेवल में, सो वी आर एबल टू सी कि हमेशा क्या होगा कि वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस होंगे ही होंगे. इन द सिमिलर मैनर ऐसी कौन सी पोजीशन थी, ऐसी कौन सी सिचुएशन थी और ऐसे कौन से लेसन्स हैं जो कॉमन है, जो हम ड्रॉ कर सकते हैं इस यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन से, राइट? There is no doubt that the internal weakness of Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspiration of the people. सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आप इनमें से यही मान सकते हो, जितने भी रीजंस हुए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो सकता है? जो वीकनेस थी, जो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, और जिसने क्या कर दिया, जो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल ही नहीं कर पाया.
क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पीपल वांटेड समथिंग एल्स, वो कुछ फ्रीडम चाह रहे थे, बट यूएसएसआर क्या कर रहा था, यूएसएसआर वाज नॉट एबल टू प्रोवाइड देम, लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड ही नहीं करवा पा रहा था। और इस वजह से कहीं ना कहीं जितने मेंबर्स थे यूएसएसआर ग्रुप में, उन्होंने फील करना शुरू कर दिया कि रशिया की मोनोपोली चल रही है, एंड नाउ इट्स ओवर, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट। इकोनॉमिकली हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, वी आर सप्रेस्ड बाय रशिया ओनली, क्योंकि रशिया हर चीज को कंट्रोल किए हुए था। सो रीजन क्या था कि इस बात में कोई डाउट नहीं, जो इंटरनल वीकनेस थी ना सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की, वो क्या हो गया, लोगों की एस्पिरेशन को कहीं ना कहीं कंप्लीट करने में सक्सेसफुल नहीं हुई, फेल हो गई, राइट। और यही क्या हुई, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम, और यही थी जो रिस्पॉन्सिबल थी यूएसएसआर के कोलैप्स के लिए, राइट। Economically, stagnation for many years led to severe consumer shortage, and a large section of Soviet society began to doubt and question the system, and to do so openly. अब देखो, आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रशिया ने क्या किया था, जब प्रॉब्लम्स इंक्रीज होनी शुरू हुई तो यूएसएसआर ने क्या किया, लोगों के वेजेस को इंक्रीज कर दिया। याद आ रहा है, लोगों के वेजेस इंक्रीज हो गए। जब वेजेस तो इंक्रीज हो गए, बट प्रॉब्लम वाज दैट कि अब वो प्रोड्यूस कुछ कर ही नहीं रहे थे इतना ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब स्टेट इतना ज्यादा ओवर कंट्रोल कर लेता है ना, तो लोगों की जो कंपटीशन वाली फीलिंग है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और जब कंपटीशन की फीलिंग खत्म हुई तो इट मींस क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो भी कहीं ना कहीं लेस होना शुरू हो गया। उसके ऑपोजिट क्या कर रहा था रशिया, और जो यूएसएसआर ग्रुप था वो आर्मामेंट्स के ऊपर खर्च कर रहा था, क्योंकि उसको यूएस के साथ कॉम्पीट करना था। इसलिए वो क्या कर रहा था, कहीं ना कहीं अपने वेपन्स की दौड़ में भाग रहा था। और जैसे जैसे वो आर्मामेंट्स की रेस में भाग रहा था, तो इट मींस इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट आर्मामेंट्स के ऊपर खर्च हो रहा था। दूसरा, जब उनकी कंट्री में कुछ ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो उनको बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही थी। और जब इंपोर्ट करनी पड़ी तो ऑफ कोर्स केवल लोगों के पास पैसे तो है, और ऑब्जेक्ट्स की क्या है, शॉर्टेज है। इस वजह से अब क्या होगा, जब पैसे भी हैं और ऑब्जेक्ट की शॉर्टेज है, तो दैट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेशन, वो हमेशा महंगाई के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब इन्फ्लेशन हुई तो इट मींस क्या हो गया, लोगों ने एक हार्डशिप जैसी सिचुएशन फील की। मतलब पैसे हैं बट इवन देन दे आर नॉट एबल टू परचेज द थिंग्स, शॉर्टेज है ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, राइट। ये चीजें आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, क्योंकि इसीलिए देखो क्या हुआ, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ना, उसने कहीं ना कहीं कंज्यूमर शॉर्टेज, मतलब वो कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाई, एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ सोवियत सोसाइटी बिगेन टू डाउट। और जो सोवियत सिस्टम था ना, जो यूएसएसआर था, उन लोगों के दिमाग में अब सस्पेक्शन होना शुरू हो गया, शक होना शुरू हो गया कि नहीं, अब यूएसएसआर ना हमारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, एंड क्वेश्चन द सिस्टम एंड टू डू सो ओपनली। और अब उन्होंने सिस्टम को, जो यूएसएसआर सिस्टम था, उसको ओपनली चैलेंज करना शुरू कर दिया। दिस वॉज द सिस्टम, समझा। तो सबसे फर्स्ट रीजन क्या था, जो इंटरनल वीकनेस थी सोवियत सिस्टम की, जो पॉलिटिकल और उसके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे ना, वो लोगों की एस्पिरेशंस और नीड के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पाए। कंज्यूमर की एस्पिरेशंस को वो लोग सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, शॉर्टेज जनरेट होती रही, एंड अलोंग विद दैट क्या होता रहा, अब लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया यूएसएसआर सिस्टम को ओपनली। ये था आपका फर्स्ट रीजन, राइट। अब फिर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द सिस्टम बिकम सो वीक एंड व्हाई डिड द इकोनॉमी स्टैग्नेट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा कि जो यूएसएसआर था उसका सिस्टम कैसा था, अब वो सिस्टम ना वीक होता जा रहा था, वो लोगों की नीड्स, एस्पिरेशंस, डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। सो अब क्वेश्चन ये है कि जो इतना बड़ा सिस्टम था यूएसएसआर, वो इतना वीक कैसे हो गया, और जिसकी इकोनॉमी थी, जितनी स्टेबल इकोनॉमी थी, वर्ल्ड की सेकेंड इकोनॉमी थी, तो वो कैसे इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई, कैसे उसमें डिफरेंसेस आने शुरू हो गए, कैसे वो इतनी वीक हो गई कि वो कंज्यूमर गुड्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रही है, वो लोगों की एस्पिरेशंस को ही फुलफिल नहीं कर पा रही है, राइट। सो द आंसर इज पार्शली क्लियर, आंसर आपको क्लियर होना चाहिए, दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, कि अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी आर्मी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि उनको क्या बनना है, वर्ल्ड की पावर बने रहना है। उनको क्या दिख रहा है, वर्ल्ड इज बाइपोलर, और जैसे ही उनकी पावर खत्म हो जाएगी, वर्ल्ड विल बी यूनिपोलर, राइट। इट मींस देयर विल बी वन पोल ओनली इन द वर्ल्ड, एंड दैट विल बी द यूएस सिस्टम। और वो यूएसएसआर कभी नहीं चाह रहा था, बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्योंकि यूएस की आइडियोलॉजी कंप्लीटली सोवियत आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थी, दैट वाज कैपिटलिज्म।
और इस चीज को यूएसएसआर कभी टॉलरेट नहीं कर पाता। इसीलिए अब वो लोग ना चाहते हुए भी सारा का सारा जो उनकी मनी थी, रिसोर्सेज थे, दे वर एक्सपैंडिंग ऑन मिलिट्री, वेपन्स, न्यूक्लियर पावर एंड ऑल दीज थिंग्स। और यही रीजन हुआ कि जहां पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए था वहां वो इन्वेस्ट हुआ ही नहीं, और अननेसेसरी चीजों के ऊपर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो गई। इस वजह से कहीं ना कहीं जो इकोनॉमी थी ना, उसको इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। समझ आ? अब देखो क्वेश्चन, आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाएगा। द सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग आर न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट इन द ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम। अब उन्होंने पैसे, रिसोर्सेज किसके ऊपर खर्च किए? न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए, मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री के हथियार खरीदने के लिए, ठीक है। इसके अलावा और किसके लिए? अपने सैटेलाइट स्टेट्स की डेवलपमेंट के लिए ईस्टर्न यूरोप में। और जो सोवियत सिस्टम थे वहां पर सैटेलाइट मतलब स्पेस वगैरह में डेवलपमेंट के लिए लोगों ने खर्च करना शुरू कर दिए, राइट। द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक इन पर्टिकुलर, दिस led to the huge economic burden that the system could not cope with। और इसकी वजह से क्या होगा? इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन जनरेट हो गया, और इसी बर्डन के साथ, इसी सिस्टम के साथ कोप अप नहीं कर पाए वो लोग, और यही बन गया रीजन किसके लिए? फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और यू कैन से फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, राइट। समझ आया? फर्स्ट रीजन क्या समझ आया? फर्स्ट रीजन आपको ये समझ आया कि जो प्रॉब्लम थी उनके साथ कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम थी, तो कंज्यूमर गुड्स के साथ और लोगों की एस्पिरेशंस के साथ कोप अप नहीं कर पाई यूएसएसआर। समझा? अब दूसरा रीजन आपने उसी को एक्सप्लेन करते हुए स्टडी किया कि क्यों इकोनॉमिक चीजों के साथ हम कोप अप नहीं कर पाए, यूएसएसआर कोप अप नहीं कर पाया। सो द थिंग वाज दे वर एक्सपेंडिंग अ ह्यूज मनी ऑन मिलिट्री और ऑन द आर्मामेंट्स, ऑन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। हालांकि टेक्नोलॉजिकली उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि पीछे था यूएस से, बट इवन देन आर्म्स के ऊपर, न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रहे थे, जिसने ओवरबर्डन कर दिया यूएसएसआर की इकोनॉमी को। और जैसे ही बर्डन हुआ इकोनॉमी के ऊपर तो ये कॉप अप कर ही नहीं पाए चीजों के साथ। समझ आया? At the same time, ordinary citizens became more knowledgeable about the economic advance of the West। अब देखो, अब जब यूएसएसआर बना था 1917 में अंडर द लीडरशिप ऑफ लेनिन, व्लादिमीर लेनिन, तो उस टाइम पे जो लोगों के दिमाग में जो कहीं ना कहीं था ना कि हम लोग क्यों ज्वाइन करें इसको, सो दैट वाज बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत रशियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जैसे वो आइडियोलॉजी, सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है? इकोनॉमिकली डेवलपमेंट ना बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। और जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी। एंड यू आर एबल टू सी द क्लियर इंपैक्ट ओवर आवर कंट्री ऑल्सो। हम लोगों ने क्या किया था 42nd अमेंडमेंट में, जो सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप लोग 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हो, क्योंकि इसके थ्रू हम लोगों ने कई सारे वर्ड्स ऐड किए थे। फॉर एग्जांपल सेक्युलर, राइट, सोशलिस्ट, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने ऐड कर दिए। तो अब इसी वजह से क्या हो रहा था? इसी वजह से कंट्रीज यूएसएसआर को ज्वाइन कर रही थी। समझा? बट प्रॉब्लम क्या हुई, यहां तक आते आते जब 1991 तक पहुंचते हैं तो उन लोगों ने क्या फील किया? दे हैव सीन द सिनेरियो ऑफ द वर्ल्ड। और क्या फील हुआ कि यूएस तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, इकोनॉमिकली भी, टेक्नोलॉजिकली भी, और हम लोग तो वी आर लैगिंग बिहाइंड। ऊपर से हमारे ऊपर इतना ज्यादा एक्सट्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहा है रशिया, रशिया की मोनोपोली चल रही है। समझा? तो मतलब जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे उन लोगों को भी समझ आना शुरू हुआ कि वेस्ट की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, इकोनॉमिकली वो लोग ज्यादा साउंड है, उनका डेवलपमेंट ज्यादा है। दे कुड सी द डिस्पैरिटीज बिटवीन देयर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ द वेस्ट। उन लोगों को अपने सिस्टम के बीच में और यूएसए के सिस्टम के बीच में डिफरेंस क्लियरली समझ आना शुरू हो गया कि क्या हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स है, क्या वहां पे प्रॉब्लम्स है, राइट। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टॉट दैट द सोवियत system was better than the western capitalism, the reality of the backwardness came as the political and psychological shock। क्योंकि मैंने आपको यही बताया कि वो लोगों को अट्रैक्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो दिखा रहे थे कि हमारी इकोनॉमी ना ज्यादा ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ के ज्यादा चांसेस हैं। और स्टार्टिंग में हुआ भी था, जब लेनिन की लीडरशिप में ना लोगों ने इस आइडियोलॉजी को, सोवियत आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया तो वर्ल्ड की सारी कंट्री शॉक्ड थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा था रशिया, अलॉन्ग विद दैट यूएसएसआर ऑल्सो। लेकिन अब उन लोगों को क्या समझा, जो यूएसएसआर का पार्ट बने, उन कंट्रीज के लोगों को ये समझा कि सिचुएशन तो कुछ हो रही है,
वेस्ट के लोग हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं, टेक्नोलॉजिकली भी ज्यादा हमसे एडवांस हैं, राइट। कैपिटलिज्म हम लोगों से कहीं ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो अब उन लोगों को क्या दिखा कि हम तो वैसे के वैसे हैं, बैकवर्ड के बैकवर्ड हैं। और जो सिस्टम समझा कि पॉलिटिकली भी, और उन लोगों को पॉलिटिकली भी शॉक लगा, क्योंकि पढ़ा आप लोगों ने कि फ्रीडम किसकी थी, सिर्फ रशिया की। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कार्टून्स की फॉर्म में भी लोग स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, स्टेट वाज एवरीथिंग। फार्मर वाला एग्जांपल याद आ रहा है, जो पूछते कि क्रॉप कैसी है, कि गुड़ तो है ही नहीं, याद आया। तो इट मींस क्या था, स्टेट वाज एवरीथिंग। तो उन लोगों को पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा शॉक लगा जब उन लोगों ने रियलिटी को फेस किया, राइट। फिर क्या हुआ, द सोवियत यूनियन हैड बिकम स्टेगनेंट इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल। अब यहां भी प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल सेंस से भी प्रॉब्लम है। अब देखो कैसे, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि रशिया में और यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पार्टी थी, दैट वाज कम्युनिस्ट पार्टी। तो मतलब डेमोक्रेसी तो वर्किंग थी ही नहीं, अगर होगी तो इट मींस दैट विल बी ऑफ नेम ओनली, दैट विल बी ऑफ नॉट रियलिटी। समझा। तो देखो, कम्युनिस्ट पार्टी दैट हैड रूल्ड द सोवियत यूनियन फॉर ओवर 70 years वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। और प्रॉब्लम क्या थी, एक ही पार्टी है। अब जब एक ही पार्टी है, उसके लीडर्स को यही पता है कि चाहे तुम कुछ भी करो लोगों के साथ, बट और कोई पार्टी तो है ही नहीं कंपटीशन देने के लिए। सो दे विल बी डूइंग एवरीथिंग इन देयर आर्बिट्री फॉर्म, राइट। वो कुछ जो भी करेंगे दे विल बी डूइंग बिकॉज दे नो दैट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन। अब देखो, हमारे लीडर्स आफ्टर एवरी 5 years व्हाई डू दे जॉइन देयर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ अस? क्योंकि उनको पता है वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर हम लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं हुए तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। एंड इन डेमोक्रेसी फाइनल पावर इज इन विद द पीपल ओनली, राइट। लेकिन यहां कम्युनिस्ट पार्टी को क्या पता था, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स को यह पता था कि चाहे हम कुछ भी करें बट लोग हमसे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, वी आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, राइट। Ordinary people were alienated by slow and stifling administration, rampant corruption। और देखो, लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, बहुत ज्यादा हार्ड था, जो सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता था। उसके अलावा क्या था, जो करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था, rampant करप्शन, हर जगह करप्शन था, बट दे वर नॉट एबल टू क्रिटिसाइज द इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक्स इट हैड मेड। और देखो, डेमोक्रेसी जब आप देखते हो ना, तो हम अपनी मिस्टेक्स को अमेंड करते हैं, राइट। लेकिन ये क्या था, ये ऐसा सिस्टम था जो कहीं ना कहीं क्या हुआ, जो कहीं ना कहीं वर्किंग ही नहीं था, राइट। मतलब यहां पर अब कम्युनिस्ट पार्टी तो मानेगी ना कि उन्होंने मिस्टेक करी है, तो इट मींस मिस्टेक्स वर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, राइट। पीपल वर रिपीटिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। अब देखो, द अनविलिंगनेस टू अलाउ मोर ओपननेस इन गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में ओपननेस थी नहीं, क्योंकि आप लोगों ने बड़े डिटेल में स्टडी किया था कि लोग क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, समझा। एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी इन अ वास्ट लैंड। और देखो, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर मतलब जहां पर पावर आपने एक प्लेस पे कंट्रोल करके रख दी। तो ये वही सिस्टम था ना जहां पर अथॉरिटी एक वन हैंड से, मतलब सिर्फ रशिया के हैंड से रिलीज हो रही थी। And every part, every country which was the part of Soviet system, they had to follow the similar thing, right? Was still the party bureaucrats gained more privileges than ordinary citizens. People did not identify with the system and with the rulers, and the government increasingly lost popular backing. अब जो ब्यूरोक्रेट्स बन गए, उनको तो क्या लगा कि हम तो भाई क्या बन गए, रूलर बन गए, राइट। आज भी हालांकि हर एक कंट्री में यही होता है, ब्यूरोक्रेसी में स्पेशली, कि वो लोगों के लिए वो क्या सोचने शुरू कर देते कि हम ही रूलर्स हैं, राइट। तो ये सिस्टम कहां था, ये सिस्टम यूएसएसआर में भी था। ऑर्डिनरी सिटीजन्स की बात को कोई सुन ही नहीं रहा है। तो अब जब लोगों को फील हो दैट एवरीवेयर दे आर इन द प्रॉब्लम, दे आर इन द डिलेमास ओनली, तो अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, वहां से कहीं ना कहीं अपोज करना शुरू किया। और जो पॉपुलैरिटी थी सोवियत सिस्टम की भी, और जो उनके लीडर्स की भी, कम्युनिस्ट पार्टी की, वो जो पॉपुलैरिटी थी वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होना शुरू हो गई। समझ आया? फाइन। यहां तक क्या क्या समझ आया कि एक तो जो कॉप अप कर नहीं पाए इकोनॉमिक चीजों के साथ, कंज्यूमर गुड्स के साथ, एक जो पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम में जो इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा था, और एक क्या था, जो सिस्टम था सोवियत, जो सेंट्रलाइज्ड था, ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा करप्टेड थे, और दे वर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, इवन गवर्नमेंट वाज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स ने क्या कर दिया, लोगों को एक इस पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया कि नहीं, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, राइट। उसके अलावा देखो क्या किया,
गोर्बाचेव्स रिफॉर्म प्रॉमिस टू डील विद दीज प्रॉब्लम्स। अब गोर्बाचेव ने, मैंने आप लोगों को बताया था उसकी ना 2 पॉलिसीज थी। वो कौन सी थी? वो पॉलिसी थी आपकी, एक तो सिस्टम कैसा था, वो सिस्टम एक तो था पेरेस्ट्रोइका और दूसरी थी ग्लासनोस्ट। अब वो क्या थी कि अब देखो उसने ना ओपननेस की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, ठीक है। और उसने क्या किया, उसने रिफॉर्म, उसने प्रॉमिस किया था कि जब मैं गवर्नमेंट में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वेस्ट के साथ क्या करूंगा, मैं कॉप अप करूंगा। और उसने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को लूज कर दिया, राइट। अब देखो लेकिन फिर भी प्रॉब्लम क्या थी, इवन देन फिर भी प्रॉब्लम ये थी, Even then problem was that कि अब देखो you may wonder why the Soviet Union collapsed in spite of Gorbachev's accurate diagnosis of the problem and his attempt to implement reforms. Here is where the answers become more controversial and we have to depend on future historian to guide us better. और यहाँ क्वेश्चन वो है कि अब जब गोर्बाचेव ने इतनी सारी चीजें अच्छी अच्छी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बोला कि मैं सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कुछ रिफॉर्म्स करवाऊंगा, वेस्ट के साथ हम कॉप अप करेंगे, तो फिर भी क्या है, फिर भी डिसइंटीग्रेशन क्यों हो गया? अब तो क्योंकि ओपननेस हो रही थी ना, तो फिर भी क्यों क्या हुआ, क्यों डिसइंटीग्रेट हो गया? तो इसके लिए शायद हमें फ्यूचर हिस्टोरियन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, राइट, कि ऐसा क्या हो गया कि वो लोग कॉप अप नहीं कर पाए और डिसइंटीग्रेट हो गया, राइट। उसके बाद the most basis answer seems to be when Gorbachev carried out the reforms and losing the system, he set in motion forces and expectation that few could have predict and become virtually impossible to control. अब देखो अब उसने क्या फील किया, अब गोर्बाचेव ने ना यही फील किया कि अब ये लोग जो सेपरेट हो रहे हैं ना, इनको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, राइट। मतलब उसने माना ही नहीं, अगर वो मूव कर रहे हैं, अगर वो सेपरेट हो रहे, then be them separate, no need to say anything to them. ये पॉलिसी किसकी थी? गोर्बाचेव की, कि अगर वो आप में इंटरेस्टेड है तो वो खुद ब खुद रुक जाएंगे आपके पास, एंड इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड देन दे विल नॉट बी स्टॉपिंग विद यू, राइट। अब देखो देयर वर सेक्शंस ऑफ सोवियत सोसाइटी व्हिच फेल्ट दैट गोर्बाचेव शुड हैव मूव्ड मच फास्टर एंड वर डिसअपॉइंटेड एंड इम्पेशेंट विद हिज मेथड्स। अब देखो क्या था, लेकिन सोवियत सोसाइटी कहीं ना ऐसे कुछ सेक्शन थे जिनको पॉलिसी पसंद नहीं आई, है ना, क्योंकि उनको लगा कि कोई ना ज्यादा फास्ट चल रहा है, राइट। और वो कहीं ना कहीं दे एंड वर डिसअपॉइंट एंड इम्पेशेंट विद हिज मेथड्स, कि मतलब वो लोग और जल्दी जल्दी चेंज चाह रहे हैं। उन लोगों ने फील किया कि मतलब वो डिसअपॉइंटमेंट हो गए पूरे के पूरे तरीके से, एंड इम्पेशेंट की अब बहुत हो गया भाई, हमने बहुत टॉलरेट कर लिया, अब लोगों ने अपना जो पेशेंस था ना वो लूज कर दिया, और उसके मेथड्स लोगों को पसंद नहीं आए, राइट। दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि गोर्बाचेव कुछ और चीजें बता रहा था लेकिन लोगों के दिमाग में कुछ और चीजें थी, तो होप्स के अकॉर्डिंग जब वर्क नहीं हो पाया तो लोगों ने सपोर्ट करना छोड़ दिया, राइट। और दे बेनिफिटेड टू स्लोली, या तो उनको बेनिफिट मिल ही नहीं रहा था, या फिर अगर बेनिफिट मिल रहा था तो दैट वाज वेरी स्लोली, और वो स्लो चेंजेस से ना लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, समझा। Others, especially members of Communist Party and those who were served by the system, took exactly the opposite view. अब देखो गोर्बाचेव जब ये बोलेगा कि मैं ओपननेस कर दूंगा, राइट, हम कोऑर्डिनेट एस्टैब्लिश करेंगे, हम क्या करेंगे, लोगों को राइट्स देंगे, तो सबसे ज्यादा अपोज कौन करेगा उस चीज को? सोच के देखो। नाउ हु विल नॉट लाइक दिस आइडिया? ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट पार्टी। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी को क्या दिख रहा है कि गोर्बाचेव जैसे ही आया ना रूल में, तो उनके सिंगल पार्टी रूल को कहीं ना कहीं चैलेंज मिल रहा है, वो हमारे रूल को खत्म कर देगा, डेंजर में क्रिएट कर देगा। इसलिए लोगों ने क्या किया, इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम में थे दे वर द मेंबर्स ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, और सबसे ज्यादा अपोज वही कर रहे थे, दे वर नॉट सपोर्टिंग द आइडियोलॉजी ऑफ गोर्बाचेव, समझा। और वो एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट व्यू रख रहे थे कि अगर ऐसा हुआ तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर हम उनके साथ कनेक्ट हुए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी आइडियोलॉजी खत्म हो जाएगी। सो फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू दे वर ट्राइंग टू क्रिटिसाइज हिम, राइट। दे फेल्ट दैट द पावर एंड प्रिविलेजेस वर इरोडिंग द गोर्बाचेव वाज मूविंग टू क्विकली, क्योंकि उनको क्या लगा कि जैसे गोर्बाचेव ना ज्यादा फास्ट तरीके से चेंजेस ला रहा है ना, तो उनके तो सारे के सारे प्रिविलेजेस जो स्पेशल राइट्स वो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो उनके खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर गोर्बाचेव ने चेंजेस किए तो ऑफ कोर्स पॉलिटिकल सिस्टम में भी चेंजेस होंगे, और ऐसे में क्या होगा, जो उनकी मोनोपोली है कम्युनिस्ट पार्टी की वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, समझ आया।
उसके अलावा इन दिस टग ऑफ वॉर गोर्बाचेव लॉस्ट सपोर्ट ऑन ऑल साइड्स एंड डिवाइडेड पब्लिक ओपिनियन। अब देखो टग ऑफ वॉर आपने देखा होगा ना, रस्सी से खींचते वो गेम होता है, कुछ मेंबर्स एक तरफ होते हैं, कुछ मेंबर्स एक तरफ होते हैं, बीच में रस्सी को अपनी तरफ खींचना होता है। अब लोगों को क्या लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि जो गोर्बाचेव के चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं, लोग अपना पेशेंस खो चुके हैं, हर तरीके से वो प्रॉब्लम्स में हैं, तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे कॉमन पीपल। जब गोर्बाचेव ने अपनी पॉलिसी बताई तो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो मतलब दोनों तरीके से सपोर्ट खत्म हो गया। लोगों को बहुत जल्दी चेंज चाहिए और उसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी उनको चेंज ही नहीं चाहिए, वो तो चाह रहे हैं कि उनका कंट्रोल, उनकी पावर कहीं ना कहीं एज इट इज बनी रहे। ऐसे में प्रॉब्लम किसने फेस की, गोर्बाचेव ने। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों तरफ से सपोर्ट खत्म हो गया और लोगों का जो ओपिनियन था ना वो डिवाइड हो गया। Even those who were with him became disillusioned as they felt that he did not adequately defend his own policies। और जो पहले थोड़ा बहुत सपोर्ट करे थे ना गोर्बाचेव को, अब उन्होंने भी अपोज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि गोर्बाचेव के अंदर ना वो पोटेंशियल ही नहीं है कि वो अपनी बातें एक्सप्रेस कर सके, मतलब अपनी पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर सकता जो पर्सन, हम क्या उसको सपोर्ट करें। इट मीन्स क्या हुआ, फ्रॉम एवरी प्लेस गोर्बाचेव लॉस्ट दी सपोर्ट, राइट। तो जैसे ही गोर्बाचेव का सपोर्ट खत्म होगा तो इट मीन्स ये भी रिस्पॉन्सिबल बनेगा फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। समझ आया? All this might have led to collapse of the Soviet Union, but for another development that surprised most observer and indeed many insiders। अब ये क्या था, इससे भी बढ़ के ना कोई और एक रीजन था। इससे भी बढ़ के क्या रीजन था, जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था वो था द राइज ऑफ नेशनलिज्म, वो था नेशनलिज्म की ग्रोथ का एंड द डिजायर फॉर सोवरेनिटी विद इन वेरियस रिपब्लिक्स इंक्लूडिंग रशिया एंड द बाल्टिक रिपब्लिक्स, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, Ukraine, Georgia and others proved to be the final and most immediate cause for disintegration of USSR। Here again there are differing view। अब देखो क्या हुआ, अब लोगों ने क्या फील करना शुरू किया कि नहीं, हमें नहीं रहना हमें यूएसएसआर सिस्टम के साथ नहीं रहना, हमें तो क्या बनना है, हमें तो सोवरेन बनना है। सोवरेन का मतलब, सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि सोवरेन का मतलब जब आप इंटरनली एक्सटर्नली फ्री होते हो। लेकिन सोवियत सिस्टम क्या था, विच वॉज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय रशिया ओनली। तो फिर लोगों ने क्या फील किया कि नहीं, हमें नहीं रहना रशिया के साथ, वी वांट टू बी सेपरेट ओनली। और इसीलिए भी लोगों ने क्या डिमांड की कि हमें तो अलग होना है। और ऐसे में जो रशिया, कौन कौन सी, जैसे कि आपकी लातविया, लिथुआनिया और ये जैसे यूक्रेन जैसी कंट्री, जॉर्जिया जैसी कंट्री, अब इन कंट्रीज ने डिमांड करनी शुरू कर दी। हालांकि कुछ ऑपोजिट व्यू भी हो सकते हैं कि ये नहीं था, बट इवन दैन जो सॉवरेनिटी की फीलिंग थी in the members of Soviet Union, that became also responsible for the disintegration of the USSR, right? अब और क्या था, one view is that nationalist and feelings were much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there had been an internal struggle within the Soviet Union। अब क्या हुआ, एक थी अब जो एक व्यू है जो नेशनलिस्ट देते हैं, वो क्या बोलते हैं कि अब ना कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, राइट। मतलब रिफॉर्म्स हो रहे थे ना, जो वर्ल्ड में हो रहे थे, कहीं ना कहीं और हो रहे थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, इंटरनल स्ट्रगल क्रिएट कर दिया रशिया में, सोवियत यूनियन में, क्योंकि बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं अब यूनियन के पीपल वही चाह रहे हैं, लेकिन वहां पर वो चेंजेस हो ही नहीं रहे। तो इट मीन्स वो चीजें किसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन गई, अब वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगी किसके लिए, रशिया के, सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के लिए। दैट इज अ व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री, बट श्योरली, अब हालांकि इस चीज का हमें पक्का नहीं पता है कि सच में ऐसा हुआ होगा कि रशिया में ऐसी प्रॉब्लम हुई, सोवियत यूनियन में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि इंटरनली स्ट्रगल हुए या नहीं हुए। अब देखो ये है दैट इज अ व्हाट इफ ऑफ हिस्ट्री, मतलब ये है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता, ये वो वाली हिस्ट्री है, बट श्योरली इट इज नॉट एन अनरीजनेबल व्यू। हालांकि अनरीजनेबल व्यू नहीं है, मतलब ऐसा भी हो सकता है। Given the size and diversity of Soviet Union and its growing internal problems, क्योंकि of course अगर 15 कंट्री का यूनियन है तो डाइवर्सिटी भी होगी, और डाइवर्सिटी तो प्रॉब्लम्स भी होंगे, इंटरनल प्रॉब्लम्स होंगी, डेफिनेटली दैट कैन बी द आंसर फॉर दैट। Other thing that Gorbachev reform speeded up and increased nationalist dissatisfaction to the point that government and rulers could not control it। और दूसरे लोगों का क्या माइंडसेट है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो गोर्बाचेव की पॉलिसी है वो कॉप अप नहीं कर पाई चीजों के साथ, और उसकी वजह से क्या हो गया, और इस पोजीशन पे चले गई लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग कि अब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, एंड फाइनली क्या हो गया, फाइनली हो गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, राइट।
अब देखो ये क्या है, ironically during the Cold War many thought that nationalist unrest would be strongest in the Central Asian republics given their ethnic and religious differences with the rest of Soviet Union and their economic backwardness, however as things turned out। और फाइनली क्या होना शुरू हो गया, हालांकि इट मीन्स फाइनली क्या हुआ कि अब चीजें कॉप अप नहीं कर पाई, अनरेस्ट हो गया इकोनॉमिकली भी, और ये सारी की सारी चीजें जो एथनिक डिफरेंसेस थे, रिलीजियस डिफरेंसेस थे, इसने कहीं ना कहीं क्या कर दिया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस क्रिएट की। और फाइनली क्या हो गया, इन 1991 देयर वाज द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और यू कैन से सोवियत सिस्टम। तो ये सारी चीजें थी जो रिस्पॉन्सिबल थी। आप सम अप करते टाइम आप क्या बोल सकते हो, जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल जो अनरेस्ट की सिचुएशन थी, जो डिस्टर्बेंसेस थी, जो कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, जो बैकवर्डनेस की सिचुएशन थी, लोगों की नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी, वेपन्स के ऊपर खर्च हो रहा था, मिलिट्री के ऊपर खर्च हो रहा था, तो लोगों की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं इंक्रीज और ज्यादा हो गई। उसके अलावा जब गोर्बाचेव ने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई तो अब क्या हो गया, उसकी वजह से ना ग्रुप्स में डिवाइड हो गया यूएसएसआर। कुछ लोग पॉलिसीज को बहुत स्लो मान रहे थे, कुछ लोग बहुत कम्युनिस्ट वाले लोग बहुत फास्ट मान रहे थे। तो गोर्बाचेव ने हर तरीके से सपोर्ट को लूज कर दिया और वन बाय वन क्या होना शुरू हो गया, कंट्रीज का मतलब कंट्रीज वहां से सेपरेट होना शुरू हो गई। कुछ लोग क्या मानते हैं कि जो सॉवरेनिटी की फीलिंग थी कि नहीं अब हमें सॉवरेन बनना है, तो यूएसएसआर के ग्रुप्स ने वो बनना शुरू कर दिया एंड दैट बिकेम द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। कुछ लोग मानते हैं कि क्या है, कुछ लोग मानते हैं कि कुछ ना इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, मतलब यूएसएसआर के बीच में, क्योंकि ऑफ कोर्स रिलीजियस एथनिसिटी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थे, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, तो लोग मानते कि डिफरेंसेस की वजह से ना कंफ्लिक्ट्स राइज हुए और इंटरनल स्ट्रगल को गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई और वो रिस्पॉन्सिबल बन गए डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो ये चीजें थी। आई होप आपको सारे के सारे फैक्टर्स अगर आप कंबाइन करो तो कहीं ना कहीं आप गोर्बाचेव की पॉलिसीज को कंक्लूड करके लिख सकते हो कि वो पोजीशन सिचुएशन को यहां तक ले आई कि अब गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाई और जैसे ही कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ तो वैसे ही क्या हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। I hope all of the factors which were responsible for the disintegration of USSR that are clear to all of you. If you are having doubts, feel free to ask your doubts in comment section. We will meet in next video with the timeline of disintegration of Soviet Union. If you are able to understand, please press the like button and subscribe the channel. We will meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.